लाइसेंस याफ्ता सर्वे ऑफिसर्स पर किसानों के देरीना अराजी तनाज़ात को मुस्तकिल तौर पर हल करने की बड़ी जिम्मेदारी है आयत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, सर्वे ऑफिसर्स को लाइसेंस किए हवाले। हैदराबाद में सिर्फ 3 घंटों के खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 6000 ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ की दर्ज। निज़ामाबाद पुलिस कांस्टेबल के कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम शेख रियाज का आज पुलिस ने कर दिया इनकाउंटर। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, सरोजनी देवी अस्पताल और दीगर आँखों के शोबे में डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे है दस्तयाब। निज़ामाबाद में रियाज के इनकाउंटर पर तेलंगाना के डीजीपी का बयान, कहा अस्पताल में रियाज ने पुलिस कांस्टेबल से गन छीनने की कोशिश, जिस पर जवाबी कार्रवाई में इसे मार दिया गया। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर दी हाजिरी और मीडिया से बात करते हुए कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो वज़ीर दाखिला भी है, अमन व वक़ार बरकरार रखने में रहे नाकाम। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि नए लाइसेंस याफ्ता सर्वे ऑफिसर्स पर किसानों के देरीना अराजी तनाज़ात को मुस्तकिल तौर पर हल करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ दियानतदारी से काम करना ही असल खिदमत है, क्योंकि किसान के साथ नाइंसाफ़ी अपने ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। उन्होंने हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के साथ लाइसेंस याफ्ता सर्वे ऑफिसर्स की तकसीम की तकरीब में शिरकत की और तरबियती याफ्ता सर्वे ऑफिसर्स को बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस जारी किए। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में तकरीबन 1.6 करोड़ एकड़ ज़रई अराज़ी है और बरसों से चले आ रहे ज़मीन के तनाज़ात को हल करने के लिए ये सर्वे ऑफिसर्स अहम किरदार अदा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना को मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बनाना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 के तहत रियासत की तवील मुद्दती तरक्की के लिए काम किया जा रहा है और तमाम सर्वे ऑफिसर्स को ईमानदारी और जज्बे के साथ इस मिशन में हिस्सा लेना चाहिए। ఈ రోజు మన సమస్యల్ని మనమే పరిష్కరించుకోవాలి, మనం చేసిన మంచి పనుల్ని ప్రజలకు మనమే వివరించుకోవాలి। నాకంటూ ప్రత్యేకమైన సైన్యం లేదు, ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థ లేదు, నా వ్యవస్థనే మీరు, ఆ వ్యవస్థలో మీరే సభ్యులు, కుటుంబ సభ్యులు। రేపటి నుంచి మీరు కూడా నిన్నటి వరకు మీరు సామాన్యమైన నిరుద్యోగ యువకులు మీ తల్లిదండ్రుల ముందు కానీ, మీ గ్రామ ప్రజల ముందు కానీ, మీ బంధువుల ముందు ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆఫీసర్స్, మీరు ఈరోజు ఆఫీసర్గా డిజిగ్నేట్ కాబోతున్నారు। మీ జీవితంలో మీ బర్త్డే మీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో, మీ జీవితంలో ఈరోజు మీరు డిజిగ్నేట్ కాబోతున్నారు ఆఫీసర్గా। ఈరోజు మీకు అందించబోయే నియామక పత్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాదు, ఇదొక భావోద్వేగం। ఈ భావోద్వేగం తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ భవిష్యత్తును 2047 తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ను మీరు ముందుకు నడిపించడానికి ఈరోజు ఈ బాధ్యతను నియామక పత్రము ద్వారా మీ చేతుల్లో పెడుతున్న, దీన్ని భద్రంగా కాపాడి 2047కి దేశంలోనే $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఈ తెలంగాణను తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మీది। ఆనాడు నేను అధికారంలో ఉంటానో ఉండనో నాకు తెలియదు, కానీ మీరందరూ ఆనాడు అధికారులుగా ఉంటారు। మీదే బాధ్యత తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ని ఈరోజు నిలబెట్టి ఆనాటికి కాపాడి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మీది। ఈరోజు మీకు ఇచ్చే బాధ్యత, ఈరోజు మీకు ఇచ్చే నియామక పత్రము, ఇది తెలంగాణ యొక్క బాధ్యతను మీకు అప్పజెప్తున్నాం। ఇది గాజు అద్దం లాంటిది, మీరు కింద పడేస్తే పగిలిపోతుంది। ఈరోజు తెలంగాణ గుండెకాయ సచివాలయంలో పనిచేయడమే కాదు, మారుమూల ప్రాంతాలలో మీరు పనిచేయబోతున్నారు। రేపటి నుంచి మా ఆడపిల్లలు అందరూ అత్తగారింటికి పోతారు, ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకొని, వాళ్ళ జీవితంలో అత్తామామలు వస్తారు। మరి అత్తమామల్నే చూసుకోవాలి, తల్లిదండ్రులను చూసుకునే బాధ్యత లేదా అని మీరు అనుకుంటే, ఈనాడు తల్లిదండ్రులు కొడుకైనా బిడ్డైనా సమానంగా చూసుకుంటారు। మా ఆడపిల్లలందరికీ నేను సూచన చేస్తున్నా, మీరు అత్తగారింటికి వెళ్ళిన అమ్మ నాయనను మంచిగా చూసుకోండి, మీరు బాధ్యతగా తీసుకోండి। ఇక మా సోదరులకు చెప్తున్న, కట్నాలు వస్తాయి, కార్లు వస్తాయి, అత్త మామ వస్తారు।
ఇప్పటి వరకు ఉన్న అమ్మా నాయననేమో చేదవుతారు, కొత్తగా వచ్చిన అత్త మామనేమో తీపి అవుతారు. నేను చాలా మందిని చూస్తున్నా. అత్త మామని మంచిగా చూసుకోవద్దని నేను అనను, మీ కట్టుకున్న సతీమణితోని మీరు బాగుండొద్దని నేను చెప్పను. तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम शेख रियाज को आज इनकाउंटर में मार दिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने ज़ख्मी रियाज को हिरासत में लेकर गवर्नमेंट अस्पताल निज़ामाबाद मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक आज सुबह रियाज के 4 मुख्तलिफ अक़साम के एक्सरे किए गए, ताहम इलाज के दौरान रियाज ने वहीं मौजूद कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। बता दें कि हफ्ते के रोज़ पुलिस हिरासत से फ़रार होने की कोशिश के दौरान मुलजिम शेख रियाज ने कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े के बाद पुलिस ने रियाज की तलाश शुरू की और कल इसे गिरफ़्तार किया गया, ताहम आज पुलिस मुकाबले में रियाज हलाक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज पर तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 30 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने दिवाली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात पेश की है। वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस दिवाली हर घर में इल्म, खुशी और खुशहाली की रोशनी हो और सब लोग सेहतमंद और खुशहाल रहें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि महफूज तरीके से त्यौहार मनाएँ। उन्होंने छोटे बच्चों को पटाखों से दूर रहने की भी हिदायत दी। उन्होंने हिदायत दी है कि दिवाली के दौरान तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला चौकस रहें। ख़ास तौर पर सरोजनी देवी आई अस्पताल और दीगर अस्पतालों के आँखों के शोबे में डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे दस्तयाब रहें। तेलंगाना में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में अब पुलिस भी गैर महफूज हो गई है। उन्होंने निज़ामाबाद कांस्टेबल के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला जो वज़ीर दाखिला भी है, अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे। हरीश राव ने दिवाली के मौके पर चार मीनार के करीब भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हैदराबाद हमेशा मजहबी हम आहंगी की अलामत रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मकतूल कांस्टेबल के ख़ानदान को इमदाद दी जाए और एक रुकन को मुलाजिमत दी जाए। उन्होंने वज़ीर कोंडा सुरेखा के ख़ानदान से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात और बढ़ते गन कल्चर पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सकाफ़त अपनी हम आहंगी के लिए नुमायाँ है, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का एहतराम करते हैं। उन्होंने आवाम की खुशहाली और हैदराबाद की तरक्की के लिए दुआ की। రాష్ట్రంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం, ఈ మధ్య కాలంలో పోలీసులకే రక్షణ లేకుండా పోయింది. మొన్ననే చూసాం, ఒక రౌడీ షీటరు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ని చంపడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. అంటే హోంమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి, హోంమంత్రి ముఖ్యమంత్రి, కానీ ఇలా ప్రజల్ని రక్షించాల్సినటువంటి పోలీసులకే రక్షణ లేకుండా పోయింది రాష్ట్రంలో. అంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా శాంతి భద్రతల్ని నెలకొల్పడంలో, ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడంలో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైపోయింది. ఇవాళ నిజంగా ఒక కానిస్టేబుల్ మరణించడం అనేది చాలా చాలా బాధాకరం. ఆ కుటుంబానికి మరి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవాలని, వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంతో పాటు వారిని అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి. నిజానికి నైతిక విలువలుంటే, బాధ్యతలుంటే ఆ రోజుల్లో హోంమంత్రులు రాజీనామా చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రికి అట్లాంటి ఏమి లేవు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు తగ్గిపోయి గుండాల రాజ్యం వస్తా ఉంది ఎక్కడ చూసినా కూడా. ఇలా ఇది అంతా కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి పోలీసులు ఇలా ప్రజల ప్రాణ మాన రక్షణను కల్పించేటువంటి పోలీసులకు ఇలా రక్షణ లేని పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పడడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. మరి అమ్మవారిని కూడా మేము ప్రార్థిస్తాం, రాష్ట్రంలో మరి ఇంకా శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పాలి, రాష్ట్రంలో ఇంకా మంచి అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగాలి అని చెప్పి అమ్మవారిని కూడా ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. हैदराबाद के मौजम जाही मार्केट और दीगर मसरूफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ 3 घंटों की खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 6000 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की। गुज़िश्ता 9 माह में 30 लाख से ज़ायद अफराद हेलमेट ना पहने पाए गए।
जबकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, तेज़ रफ्तारी और ट्रिपल राइडिंग के हज़ारों केसेस दर्ज हुए। पुलिस के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 20,000 से ज़ायद चालान जारी किए जा रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर बाइक सवार शामिल हैं। सिग्नल तोड़ने, फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने के भी हज़ारों केसेस सामने आए हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें ताकि हादसात और भारी जुर्मानों से बचा जा सके। हैदराबाद के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके PNT कॉलोनी में पार्क की गई कार पटाखे फटने के नतीजे में झुलस गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तब तक कार तकरीबन जल चुकी थी। निज़ामाबाद में रियाज के इनकाउंटर पर तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी का बयान सामने आया है। DGP के मुताबिक रियाज को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसने मौके का फ़ायदा उठाकर कमरे के बाहर तैनात AR कांस्टेबल की बंदूक छीनने की कोशिश की और फ़रार होने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की। DGP ने कहा, पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें रियाज मौके पर ही हलाक हो गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर रियाज को फायरिंग का मौका मिल जाता तो अस्पताल में मौजूद कई जानें ख़तरे में पड़ जाती। इसीलिए पुलिस ने आवाम की जानों को बचाने के लिए फौरी फ़ैसला लेते हुए कार्रवाई की। DGP ने उन खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया जिनमें कहा गया था कि पहले रियाज ने फायरिंग की और AR कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ। उनका कहना था कि रियाज ने फायरिंग की कोशिश की। कल निज़ामाबाद के सारंगपुर इलाके में शेख रियाज ने आसिफ नामी शहरी पर हमला करके इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। आसिफ पुलिस की मदद कर रहा था ताकि रियाज को गिरफ़्तार किया जा सके, जिस पर रियाज ने आसिफ पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आसिफ को हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आसिफ के भाई ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई। రోజు కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ గారిపై దాడి చేసిన రియాజ్ కోసం ఆదివారం పోలీసు వారు సారంగపూర్ ఏరియాలో వెతుకుతున్న సమయంలో అక్కడే మా అన్న ఆఫీస్ వెల్డింగ్ షాప్లో పనిచేస్తుండగా షాప్ ముందు నుండి దొరకగా పారిపోతుండగా మా అన్న అతన్ని పట్టుకొని పోలీసు వారికి అప్పగించే సమయంలో మా అన్న పైన కత్తితో 2 చేతులపై కోసినాడు. మా అన్నకు నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో చూపించగా డాక్టర్స్ హైదరాబాద్కు పంపించినారు. పోలీసు వారు మా అన్నతో హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో దగ్గర ఉండి ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తున్నారు. మా అన్న కూలి పని చేసుకుని జీవిస్తాడు. 2 చేతులపై తీవ్రమైన గాయమైంది. మా అన్న పరిస్థితి సీరియస్గా ఉంది. పోలీసు వారు దగ్గర ఉండి హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తున్నారు. BC जॉइंट एक्शन कमेटी के 8 अरकान को रियासत गिरबन के दौरान हैदराबाद में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक BC अरकान ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। बादशाह इन्हें अदालत में पेश किया गया और वह ज़मानत पर भी रिहा हो गए। ये बंद तेलंगाना हाई कोर्ट के उस हुक्म के ख़िलाफ़ मनाया गया जिसमें बल्दियाती इंतखाबात में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देने के सरकारी फ़ैसले पर अबूरी रोक लगाई गई थी। इस एहतजाज की हिमायत तमाम सियासी जमातों बशमूल कांग्रेस ने की। नल्लाकुंडा में एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़, बजाज शोरूम और राघवेंद्रा टिफिन सेंटर को ज़बरदस्ती बंद करने और तोड़फोड़ के वाक़यात भी पेश आए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीबी मुजाहिरीन ने दुकानों को बंद करवाया, जिसकी वजह से हैदराबाद में बस खिदमात मुतासर रही। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पुचमा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, बालाजी और जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार। लाइसेंस याफ्ता सर्वे ऑफिसर्स पर किसानों के देरीना अराजी तनाज़ात को मुस्तकिल तौर पर हल करने की बड़ी जिम्मेदारी है आयद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, सर्वे ऑफिसर्स को लाइसेंस किए हवाले।
हैदराबाद में सिर्फ 3 घंटों के खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 6000 ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां की दर्ज। निजामाबाद पुलिस कांस्टेबल के कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम शेख रियाज का आज पुलिस ने कर दिया इनकाउंटर। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, सरोजनी देवी आई अस्पताल और दीगर आँखों के शोबे में डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे है दस्तियाब। निजामाबाद में रियाज के इनकाउंटर पर तेलंगाना के डीजीपी का बयान, कहा अस्पताल में रियाज ने पुलिस कांस्टेबल से गन छीनने की कोशिश, जिस पर जवाबी कार्रवाई में इसे मार दिया गया। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर दी हाजिरी और मीडिया से बात करते हुए कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो वज़ीर दाखिला भी है, अमन व वक़ार बरकरार रखने में रहे नाकाम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।